Assalamu alaikum everyone. In this video, we are going to discuss all the concepts that you need to know for this topic, polynomials. You can also find quick revision videos on all other A-level math topics in the description below, along with complete syllabus recordings, as well as a lot of solved topical and yearly past papers. Now let's begin with this. So first of all, what are polynomials? You all know about functions like these: linear functions, quadratic functions, cubic functions, and so on. इनमें क्या हो रहा होता है? You have some powers of x added or subtracted, integer powers of x added or subtracted. इन सब को हम इकट्ठा अगर कैटेगराइज करें तो हम इनको कहते हैं पोलिनोमियल. सो यू कैन हैव क्वार्टिक फंक्शंस हियर एज वेल, जहां पे पावर 4 आ जाती है, पावर 5, पावर 6. In general, these are called polynomials. ठीक है, so this topic is about that. Now, the first thing that we need to know about is long division. How do we divide one polynomial by another using long division? Let's start with that. Let's take an example like this. For example, आपके पास अगर एक polynomial इस तरह से है, you want to divide that by 2x square minus x plus 4. How does that work? आप इस तरह का एक structure बना लेंगे. Inside the structure you have the dividend written, और इसके बाहर left side पे आप divisor लिख लेंगे इस तरह से. ठीक है. Now, how does the process work? The first thing you're going to do is you're going to say, let's look at the first term of the divisor and the dividend. आप 2x square को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x raised to power 4 मिलेगा. You'll have to multiply it by 2x square, तो वो आपके पास यहाँ पे ऊपर क्वोशंट पे फर्स्ट टर्म आ गई. फिर आप क्या करोगे, इस 2x square को इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे और जो रिजल्ट आएगा आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख दोगे. ठीक है. नाउ एट दैट पॉइंट व्हाट यू डू इज यू चेंज द साइंस. आपको एसेंशियली सबट्रैक्ट करना होता है. इसका आसान तरीका क्या होता है, आप नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें साइंस चेंज कर देते हो. वंस यू चेंज द साइंस यू एड the like terms like this, इनको ऐड करके नीचे लिख देते हैं. फर्स्ट टर्म्स हमेशा कैंसिल हो जाती हैं, बाकी सब आप ऐड करके नीचे नेक्स्ट स्टेप पे ले आते हो. एंड देन यू जस्ट रिपीट द प्रोसेस. आप फर्स्ट टर्म देखते हो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की, और फर्स्ट टर्म देखते हो डिवाइजर की. आप सोचते हो कि अच्छा 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x क्यूब आएगा. you'll have to multiply 2x square by 4x to get 8x cube. तो आप यहाँ पे कोशेंट पे नेक्स्ट टर्म लिख देते हो 4x. ठीक है. अब 4x को क्या करेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ, वो आपको दे देगा 8x cube minus 4x square plus 8x. All right. And then again, you change the signs of this expression and add the two expressions, add the like terms of the two expressions. Add करेंगे, नीचे लिख देंगे. And then you again do the same thing again. आप ये first term देखोगे, 2x square को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो minus 6x square मिलेगा. आप उसको minus 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आप क्वोशंट पे next term लिख दोगे. And then you see what happens. आप -3 को इस पूरे डिवाइड से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे लिख दोगे. ठीक है. You change the signs again and you add the like terms. In this case you end up with -11x plus 10 in the next row now. अब फिर आप देखेंगे उसी तरह से 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -11x आएगा. You would realize अब मल्टीप्लाई करके नहीं हो सकता, आपको डिवाइड करना पड़ेगा. At this point you stop and you say whatever you have at the end is your remainder, और जो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है that is your quotient. Okay, so that's how the division process works. When do you stop? You stop when the degree of the remainder, जो नीचे वाला expression है, इसकी degree becomes less than the degree of the divisor. तो यहाँ पे degree 1 है, ऊपर 2 थी. जब ये ऐसे हो जाए तो आप यहाँ पे रुक जाओगे. You won't continue the process. आपके पास quotient और remainder आ जाएगा. ठीक है. अब इसमें आपको ये एक कनेक्शन पता, ये एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट और रिमाइंडर का. Dividend over divisor is equal to quotient plus remainder over divisor. This is extremely helpful later on in integration as well. वहाँ पे आपको ये यूज करना पड़ता है. You have to keep this in mind. इसी की एक और रीअरेंजमेंट होती है. अगर आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन को, you get something like this as well. That's okay if you do not know this, but अगर आप ये भी पता हो तो this helps understanding the remainder theorem better. But anyway, let's move on. Now let's take a couple of more examples on that. कभी कभी क्या होता है, आपके पास डिविडेंड में कोई टर्म मिसिंग होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे x स्क्वायर टर्म मिसिंग है, तो आप क्या करोगे, जो टर्म मिसिंग है उसकी जगह पे डाल दोगे 0 into that term. So basically x square term missing है, you'll say 0x square. यहाँ पे इसका फायदा क्या होगा, like terms आपकी aligned होंगी, एक दूसरे के नीचे आ रही होंगी, उससे आपके errors के chances बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है. तो जब भी कोई term missing होगी उसकी जगह पे आपने क्या कर देना है, 0 डाल देना है. dividend missing हो तो आपने इस तरह से कर देना है. Sometimes you have we have a term missing in the divisor as well. For example, if you want to divide this cubic expression by x square plus 1, यहाँ पे आप x term missing है तो उसकी जगह पे आप क्या करोगे, 0x डाल दोगे. It will help you with your calculation. आपकी like terms aligned होंगी, otherwise
इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वर्क्स एग्जैक्टली द सेम. Now, there's another method for division as well. That's called synthetic division. This is optional. This is not part of the syllabus, but it simplifies things a lot in those cases where the divisor is linear. So this is only going to be used when the divisor is linear. ठीक है, उस केस में ये थोड़ा सा जल्दी हो जाता है process. Let's take an example of this and see how this works. Let's say आपके पास एक इस तरह से expression है 12x cube and so on. That is divided by 3x plus 1. Now this is the linear divisor. आप यहाँ पे synthetic division use कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना होता है. ये आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो and then what you do is जो आपका पोलिनोमियल है जो डिविडेंड है उसके कोएफिशिएंट्स आपने लिख देने हैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो में. सो 12 minus 20 1 and 3 you write these coefficients here. और फिर जो आपका डिवाइजर है put that equal to 0. 3x plus 1 equal to 0. उससे x की क्या वैल्यू आती है, you get x equals -1/3. -1/3 आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इस पोजीशन पे डाल देना है. ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, आपने वो इनपुट कर दिया. अब now how does the process work? The first term, the first coefficient, the first number here is going to come down as it is. ठीक है, ये हमेशा first number as it is नीचे आ जाएगा. आप इसको end पे last row में लिख देंगे. फिर आपने क्या करना है, आपने इस -1/3 को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से. ये आपके पास क्या आएगा, -1/3 into 12, that gives you -4. You write that here, -4. And then you add these two terms. These two numbers, -20, -4, what does that give you? That gives you -24. -24 आपके पास नीचे आ गया. अब आप क्या करेंगे, -1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -24 के साथ. That's the next step. तो आपने अभी इसको मल्टीप्लाई करना है. -1/3 into -24, what does that give you? That gives you 8. वो आपने यहाँ पे लिखा और फिर आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को इस तरह से ऐड कर लिया. 1 plus 8, what's that? That is 9. तो आपके पास 9 नीचे आ गया. What do you do now? -1/3 को अब आपने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर देना है. What does that give you? That gives you -3. You write that here, add these two things, and that gives you 0 at the end. अब ये जो आपके पास लास्ट रो आ रही है, इससे आपको कोशेंट और रिमाइंडर दोनों मिल रहे हैं. कैसे? जो लास्ट टर्म है that is going to give you the remainder, और जो first उसके अलावा जो बाकी numbers आ रहे हैं ये आपके quotient के coefficients हैं. So last term is 0, last number is 0, you'll say that's the remainder. So remainder आपका 0 आ गया. उसके बाद फिर right से left जाते हुए the first term is going to be your constant, the next one is going to be your x power 1 term, and the next one is going to be x power 2 term. तो इससे आपका quotient क्या आता है यहाँ पे, 12x square minus 24x plus 9. At the end, you have one extra step. This is not your final quotient yet. Quotient आपके पास आएगा फिर यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट था डिवाइजर में जो x का कोएफिशिएंट था, एंड पे आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप ये करना है कि उस कोएफिशिएंट से इधर डिवाइड कर देना है, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द फाइनल कोशेंट, राइट. तो कोशेंट आपके पास ये आ जाएगा. योर कोशेंट टर्न्स आउट टू बी 4x squared minus 8x plus 3. तो ये जो आपके पास टर्म्स आएंगी लास्ट रो से, उनको आपने लिखना है इस तरह से और फिर उस नंबर से डिवाइड कर देना है. अगर ये 1 है तो फिर तो करने की जरूरत नहीं है. अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है, you'll have to divide by that and that will give you the quotient. Alright, so this is another method for dividing polynomials. This works when the divisor is linear, and this is a bit quicker once you get the hang of it. आप 2-3 इस तरह के practice questions करते हैं तो ये आपको पता चलता है काफी जल्दी हो जाता है process. अच्छा, let's move on. Now, the next thing that you need to know about is remainder theorem. Now, again, this also works only for linear divisors. And why is this useful? अगर आपको remainder find करना हो एक division से सिर्फ, you do not want the quotient, you only want remainder. उसके लिए this is really helpful. आपको division किए बगैर remainder मिल सकता है. Now, how does this work? Let's say you have a linear divisor that is x minus a और एक polynomial है p of x. तो उसका remainder क्या होएगा, p of a. Now what does that mean? आपने x की value a input कर देनी है उस polynomial के अंदर. Now let's take an example of this to understand this. Let's say आपके पास divisor है x minus 4. तो आप क्या करोगे, x minus 4 को 0 से equate करोगे, x की value 4 आ गई तो आप polynomial के अंदर 4 input कर दोगे, that is going to give you the remainder. And similarly, if you have another divisor, for example 2x minus 6 है, तो आप इसको 0 से equate करोगे, x की वैल्यू 3 आती है, उससे x की वैल्यू 3 यहाँ पे इनपुट करेंगे तो आपको पोलिनोमियल के अंदर इनपुट करेंगे p of 3, तो वो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. यू पुट द डिवाइजर इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दैट एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द पोलिनोमियल, दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिमाइंडर. Let's take this example. Let's say you have to find the remainder when this polynomial is divided by 2x plus 6. You put 2x plus 6 equal to 0, x की वैल्यू -3 आ गई. ये -3 आपने जाके उस पोलिनोमियल के अंदर इनपुट किया
और आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज योर रिमाइंडर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट फैक्टर्स? फैक्टर्स क्या होते हैं? अब आपके पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, आप उसको डिवाइड करते हो किसी और एक्सप्रेशन के साथ, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो आपका डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है, और आपका जो कोशेंट होता है वो भी फैक्टर होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यूजिंग नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से आपके पास 68 है, 68 आपने 4 से डिवाइड किया, कोशेंट आ जाता है 17। इस तो और आपका रिमाइंडर क्या आता है इस केस के अंदर? 0, बिकॉज 4 कंप्लीटली डिवाइड 68। जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि 4 आपका फैक्टर है 68 का, एंड वी नो दैट्स ट्रू। अब 4 फैक्टर है तो ऊपर जो कोशेंट है वो भी फैक्टर है। व्हाई? बिकॉज 68 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है उसका क्या मतलब होता है? बोथ द डिवाइजर एंड द कोशेंट आर फैक्टर्स, right? So let's apply this to polynomials now. Let's say we want to divide let's say we have to factorize this polynomial 2x cube minus 14x plus 12. हम तो हमें ये पता है लेट्स से x minus 2 फैक्टर है, तो इसने यहाँ पे कहा है x minus 2 से डिवाइड करें, उसको फैक्टराइज करें। सो लेट्स से वी डिवाइड बाय x minus 2 से डिवाइड किया, हमारे पास एंड पे रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मींस x minus 2 इज अ फैक्टर। नाउ इफ x minus 2 इज अ फैक्टर, that means the quotient there, that is also a factor. So this polynomial therefore has two factors, which are x minus 2 and 2x square plus 4x minus 6, जो आपके पास ऊपर कोशेंट आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे फैक्टराइज करते हुए ना उसने कभी कभी आपको ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे एक हिंट दी होगी, फैक्टराइज कंप्लीटली। उसका क्या मतलब होएगा? अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है, मोस्ट लाइकली वो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो आपने उसको फर्दर फैक्टराइज करना है मिड टर्म ब्रेक करके। वो लीनियर फैक्टर्स के बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज करें मिड टर्म ब्रेक करके, तो वो लीनियर फैक्टर्स बन जाते हैं। अगर कंप्लीटली लिखा होगा वो हमेशा ये इस तरह से फर्दर फैक्टराइजेशन हो रही होगी। अगर नहीं भी लिखा होगा तो आपने चेक कर लेना है कि होती है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर आता है, यू हैव टू चेक वेदर इट कैन बी फर्दर फैक्टराइज्ड और नॉट। ओके, सो इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। समटाइम्स यू हैव टू प्रूव दैट some divisor is some expression is a factor of another of a polynomial। तो आप क्या करते हो? रिमाइंडर फाइंड करते हो। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यू से दैट इज अ फैक्टर। अगर तो वो लीनियर डिवाइजर है तो आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो। अगर वो डिवाइजर लीनियर नहीं है, कोई और है, क्वाड्रेटिक है फॉर एग्जाम्पल, तो आप फिर लॉन्ग डिवीजन करते हो, उससे आप देख लेते हो रिमाइंडर 0 आता है, तो उसका मतलब है कि वो फैक्टर है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। तो प्रूव करने के लिए आपको ये फैक्टर प्रूव करने के लिए आप ये प्रूव करते हो दैट द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। Okay, so just to make sure you remember this, divisor जब linear होता है तब remainder theorem यूज कर सकते हैं सिर्फ, और synthetic division भी सिर्फ तभी यूज करनी है। Otherwise when the divisor is not linear तो आप long division ही करेंगे। और जब आपको quotient चाहिए तो और रिमाइंडर के साथ साथ अगर आपको क्वोशेंट भी चाहिए तो फिर रिमेंबर आप रिमाइंडर थ्योरम का फायदा नहीं है। अगर आपको क्वोशेंट चाहिए तो फिर आपको डिवीजन ही करनी पड़ेगी। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इज सॉल्विंग पोलिनोमियल इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल क्यूबिक इक्वेशंस, क्वार्टिक इक्वेशंस, पावर 6 इक्वेशंस। ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? लेट्स थिंक अबाउट दिस। अब हमें क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, उसको फैक्टराइज करना पड़ता है हमें किसी तरह से, फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। इसके फर्स्ट पार्ट में उसने एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x raised to power 4। दिस इज अ क्वार्टिक पोलिनोमियल इन फैक्ट, पावर 4। इसमें वो उसने बताया कि एक फैक्टर ये है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसने एक फैक्टर बता दिया। फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वो तो हम कर सकते हैं, इट्स अ क्वाड्रेटिक डिवाइजर, तो हमें लॉन्ग डिवीजन यूज करनी पड़ेगी। लॉन्ग डिवीजन हमने यूज की, एंड पे रिमाइंडर आ गया a minus 1 into x, रिमाइंडर 0 होना चाहिए अगर वो फैक्टर है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब ये है कि जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, दिस शुड बी इक्वल टू 0। a minus 1 को हम 0 से इक्वेट कर देंगे, उससे a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सेकंड पार्ट में हम कहते हैं फाइंड द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ हाउ डज दैट वर्क? आपके पास जो इक्वेशन है, आपके पास ये पोलिनोमियल है, that is equal to 0. Now we do not know how to solve a quartic equation. We do not even know how to solve a cubic equation. तो हम ये कैसे करेंगे? उसने एक फैक्टर हमें बताया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दूसरा फैक्टर हमारे पास, हम उससे डिवाइड किया, एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो दूसरा फैक्टर हमें कोशेंट में मिल जाता है। तो हमने इस पोलिनोमियल को बेसिकली फैक्टराइज कर लिया। उसको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, now this thing multiplied by this thing is equal to 0. That means either the first expression is equal to 0 or the second expression is equal to 0. तो ये दो quadratic equations में आपका split हो गया। अब इन quadratic equation को solve करके हम इसको solve कर सकते हैं। एक से हमें solutions मिल रहे हैं, दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। So these are the solutions that we get from this. जब cubic होगी तो एक linear होगा, एक quadratic होगा, और हम दोनों को हम आगे solve कर लेंगे।
ठीक है, दिस इज हाउ वी सॉल्व इक्वेशंस. Sometimes they do not give you one factor. यहाँ पे ऊपर तो एक फैक्टर दिया हुआ था, हम दूसरा फैक्टर पे डिवीजन से निकाल सकते थे, but sometimes what happens is they do not tell you any factor of that polynomial. For example, if you have to solve this equation here, this is a cubic equation. We do not have a method, an algebraic method that we know of for solving this, but they ask us to solve this directly without giving us any factor. तो हम क्या करेंगे इस तरह के केसेस में, हमेशा एटलीस्ट एक सोल्यूशन जो होगा इस इक्वेशन का वो इंटीजर होएगा, ठीक है, अदरवाइज आप कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है. तो वो इंटीजर सोल्यूशन कैसे आपके पास आएगा? जब भी किसी पोलिनोमियल का इंटीजर सोल्यूशन होता है तो वो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके फैक्टर्स में से होता है, ठीक है. ये हमेशा कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स में से होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता. तो अगर यहाँ पे आप देखें कांस्टेंट टर्म -2 आ रही है, राइट, आपने क्या करना है, 2 के फैक्टर्स देखने हैं. 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 और 2. आपने +-1 और +-2 ये दोनों ट्राई कर लेने और देखना है कि क्या इनमें से कोई सोल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है. आप इनपुट करके दिखाएंगे उसको. तो आपने 1 इनपुट किया, -1 इनपुट किया, ये वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है, बट हैव टू शो कि अच्छा आपने 1 ट्राई किया, फिर आपने -1 ट्राई किया, फिर आपने 2 ट्राई किया. तो एक ऑर्डर में आपने ये ट्राई करने हैं. इवन इफ यू डूइंग दिस ऑन योर कैलकुलेटर, आपने ये शो कर देना है कि x=1 इनपुट किया तो ये आता है, x=-1 इनपुट किया तो वो आता है. ये आपको दिखाना है. फिर आप कहेंगे अच्छा x=2 पे मुझे 0 मिल गया, दैट मीन्स x=2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो एक सोल्यूशन आपको गेस करना पड़ेगा इस तरह के केसेस में यूजिंग hit and trial like this. Okay, now when you know x=2 is a solution, that means x-2 is a factor. So now the rest of the process remains the same as before. आपको x-2 एक factor मिल गया उस polynomial का, you will divide that polynomial by x-2, quotient में आपको दूसरा factor मिल जाएगा, and you would just write that equation in factorized form. Then इस तरह से factorized form में लिख दिया आपने, divisor into quotient that equals 0. क्वोशंट वाली इक्वेशन आपने अलग से सॉल्व कर ली, उससे आपको एक और सोल्यूशन मिल गया. इस केस के अंदर एक आ रहा है, उसका 2 भी आ सकते थे. दैट्स आल्सो फाइन, ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट गिवन अ फैक्टर and you have to solve an equation. Now sometimes they ask you to prove that a polynomial is always positive or always negative or never positive or never negative. How do you approach such problems? Let's have a look at this example. You have this polynomial. उसने बताया हुआ कि this is divisible by x square minus 4x plus 4. उसने एक factor दिया हुआ है essentially. आपको सबसे पहले a की value figure out करनी है. Again remainder find करें, remainder को 0 से equate कर दिया, a की value तो आ गई. अब ये second part जो है वो देखें, that's important. उसने कहा है prove that, show that this polynomial is never negative. Okay, now how does that work? अब देखें ये polynomial क्या है? This is x raised to power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 8. This is a quartic polynomial, right? Power 4 polynomial. इस तरह के functions के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है. We only know about quadratic functions and linear functions. Quartic function का हम क्या करें? We can't do anything about this directly. So what we do is we factorize this first of all. Quartic आए या cubic आए, वो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? उसको factorize करना पड़ेगा. We have already done that in the previous part. हमें एक factor पता था, x square minus 4x plus 4. दूसरा factor हमारे पास quotient में आ गया. यहाँ पे इन दोनों को multiply करेंगे तो आपके पास इसकी ये factorization आ गई. And now these are two quadratic factors that we have. We know how quadratic expressions work. तो हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का हम अलग अलग क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं. दिस इज अ जनरल थिंग दैट यू विल ऑलवेज डू. ये जो दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आपके आएंगे उनके आप टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेंगे. नाउ दीज आर बोथ यू शेप्ड कर्व्स, राइट, बिकॉज एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स दोनों में पॉजिटिव हैं, तो दोनों यू शेप्ड हैं. दोनों के टर्निंग पॉइंट्स आप निकालें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, x इक्वल्स माइनस बी ओवर 2a से कर सकते हैं. किसी भी तरह आपने टर्निंग पॉइंट्स इसका निकाल लिए. तो मैंने x इक्वल्स माइनस बी ओवर 2a यूज किया, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया और y कोऑर्डिनेट आ गया. y कोऑर्डिनेट मेरे पास फर्स्ट फैक्टर का ये आ रहा है y इक्वल 0, सेकंड का आ रहा है y इक्वल 1. दैट मींस जो फर्स्ट मेरी कर्व है that has a minimum point of 0 and the second expression has a minimum point of 1. तो मेरे पास दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. पहले वाले का मिनिमम पॉइंट जो है वो 0 है, दूसरे वाले का मिनिमम पॉइंट 1 है. दैट मींस द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड द सेकंड एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो अगर हम दो एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं जिनमें से एक 0 या उससे बड़ी है, दूसरी 1 या उससे बड़ी है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. दैट also has to be greater than
or equal to 0 and that means it's never negative and that's what we had to prove. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने क्या करना है, उनको फैक्टराइज करके उन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग देखना है, उनके टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेने हैं, उसकी बेसिस पर you're going to argue whether that's positive, negative and so on. All right, so this is how you approach these problems. The next thing you have to do is you have to be able to solve cubic inequalities. Let's look at this example for that. So you have this polynomial. First part में वो कहता है it's divisible by this quadratic expression. आपने a की वैल्यू फिगर आउट करनी है, pretty standard. ऊपर भी हम देखते आ रहे हैं, रिमाइंडर फाइंड करें, डिवीजन करनी पड़ेगी बिकॉज ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लॉन्ग डिवीजन करनी पड़ेगी, तो डिवाइड करके रिमाइंडर को 0 से इक्वेट कर दिया, you get the result. सेकंड पार्ट में वो कहता है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी p of x लेस देन 0 जस्टिफाइंग योर आंसर. अच्छा, इसमें 3 मार्क्स हैं. अगर आप सिर्फ आंसर लिख देंगे, जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. आपको प्रॉपर रीजनिंग देनी है और अगर आप गलत मेथड यूज करके आंसर निकाल लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट. ओके, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके पास ये पोलिनोमियल है, आपके पास दिस इज सपोज टू बी लेस देन 0, राइट. अब इसमें ये नहीं कर सकते कि इसके जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके फैक्टर्स आ रहे हैं 2x plus 1 into 2x square minus 3x plus 3. We know that from the previous part. ये दो फैक्टर्स आ गए हैं. This is less than 0. This does not imply that 2x plus 1 is less than 0 or 2x square minus 3x plus 3 is less than 0. This is incorrect. ये नहीं होता. Equation के लिए that something like that holds, but inequalities में we can't do this. This is incorrect. तो अगर आप इस तरह करेंगे, even if you get the correct answer, you are not going to get full marks. This is not correct. So how are you going to approach this? इसको हम अप्रोच कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे. सो हाउ डू यू डू दिस? यू फर्स्ट ऑफ ऑल से लेट्स ट्रीट दिस एज एन इक्वेशन इंस्टेड. सो उस पोलिनोमियल इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लेट्स ट्रीट दिस एज एन इक्वेशन फॉर नाउ. ट्रीट दिस एज एन इक्वेशन एंड देन यू फैक्टराइज. फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं पिछली डिवीजन को यूज करके. फैक्टराइज एंड सॉल्व टू फाइंड द कट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, फैक्टराइज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करते हैं इससे कट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक वाले से कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन दूसरे इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है x equals -1/2. So that's one cut off point that we have now, -1/2. Once we have this, we draw a number line. We use a number line to check which region satisfies that inequality now. So what's the cut off point? The cut off point is -1/2. Number line पे हमने -1/2 मार्क कर लिया. What was the inequality now? This was the inequality. जो सबसे ऊपर लिखी हमने यहाँ पे लिख ली, just for reference. And now what we do is we take one number to the left of -1/2. -1/2 के लेफ्ट पे कोई भी एक नंबर ले लें, -1/2 के राइट पे कोई भी नंबर ले लें. इन दोनों साइड्स पे कोई भी एक नंबर लें, उनको चेक करें इनइक्वालिटी के अंदर कि क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती. हमने -1 इनपुट किया, इसके अंदर -1 पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है. जब 0 इनपुट करते हैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है. दैट मींस -1/2 के लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है दैट इज करेक्ट. सो आवर फाइनल आंसर देयरफॉर इज गोइंग टू बी x less than -1/2. Okay, अब इसमें क्योंकि उसने कहा justify your answer, you have to show this working, otherwise you will not get full marks. Okay, so this is one way of solving cubic inequalities. It works exactly the same way, almost exactly the same way that modulus inequalities used to work. Okay. So that's pretty much all that you need to know in terms of concepts. This is one last example, which is one of the more difficult questions that came in past papers. Let's quickly have a look at this. We have this polynomial 4x raised to power 4 plus ax squared plus 11x plus b. We are given that x squared minus x plus 2 is a factor of this. Divisible by का मतलब है वो factor है. We have to find the values of a and b. Now it works the same way as before. Divisible factor है तो क्या करना है, आपने देखना है रिमाइंडर को 0 से इक्वेट करना है. लेकिन इस केस के अंदर डिवीजन थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है. उसकी वजह यह है कि आपके पास जो ये अननोन है ना a, ये शुरू में आ गया पोलिनोमियल के, उसकी वजह से डिवीजन करते हुए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन डिवाइडिंग दिस. सो द प्रोसेस वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे एज बिफोर, बट जस्ट मेक श्योर जब आपके पास यहाँ पे a आ रहा है तो आपने जब उसको नीचे लिखना है ax स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, इस तरह लिखने के बजाय आपने क्या करना है, a माइनस 8 ब्रैकेट में लिखना है, पूरा जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और x स्क्वायर उसके साथ आएगा. इसका फायदा क्या होगा, जब आप आगे जाके नेक्स्ट स्टेप कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे a माइनस 8 में से आपने 4 ऐड करना है. सो ये क्या बनता है, a माइनस 8 प्लस 4, दैट गिव्स यू a माइनस 4. सो नेक्स्ट स्टेप में जब आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा a माइनस 4 होल मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर. तो जब ऊपर अब आप देखोगे x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट्स प्रीटी क्लियर कि आपको a माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्वोशंट में यहाँ पे a माइनस 4 आना चाहिए. अगर आप इसको अलग अलग लिखते हैं इस तरह से,
ax squared minus 4x squared, इट्स वेरी लाइकली कि आप कहते हैं कि अच्छा सिर्फ a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका क्वोशंट गलत हो जाता है। तो आपने ब्रैकेट में इस तरह से पूरा कोएफिशिएंट इकट्ठे लिखना है इस तरह से, ठीक है। सो you can have a look at this process, how exactly this is working. Last step में, for example, this is 3 and then you have plus a minus 4, that gives you a minus 1. And similarly जो constant term है right side के ऊपर, you can see that's b and then minus 2a plus 8 because of this minus sign, तो वो b minus 2a plus 8 इस तरह से आ जाता है. So this is what the remainder turns out to be at the end. Now the remainder is supposed to be 0. What do we do in this case? ये तो बहुत ही complicated expression आ रहा है. Remainder 0 होने का मतलब ये है every single term of that remainder should be equal to 0. यानी कि अगर constant term आ रही है, constant भी 0 होना चाहिए. अगर x term कोई आ रही है तो x का coefficient भी 0 होना चाहिए. अगर x square term कोई आ रही है उसका coefficient भी 0 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कि एक आपके पास x टर्म आ रही है और दूसरा आपके पास कांस्टेंट आ रहा है. सो दोनों जो है वो इंडिविजुअली 0 के इक्वल होने चाहिए, बिकॉज x की जो मर्जी वैल्यू इनपुट करें ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा 0 होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, a माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, उससे हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई, और b माइनस 2a प्लस 8 उसको पूरे को 0 से इक्वेट करेंगे और a की वैल्यू उसमें डालेंगे तो b की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी यहाँ पे. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस वुड वर्क. Okay, that's all that you need to know in polynomials. I hope that was helpful. If you like this video, please make sure that you press the like button and subscribe for more helpful content in future as well. And also, please make sure that you share with at least one of your friends so that more people can benefit from this as well. And just a reminder that you can find a lot of other helpful content in the description below as well. Check that out. You'll find that useful for your exam. Okay, that's it for this session. I'll see you again in another video. Allah Hafiz.